یہ کسی مکتبہ فکر کا نعرہ نہیں، الحمدللہ حسین پوری انسانیت کا حسین ہے۔ لبیک یا حسن، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک پڑھیے، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ المبارک کا عظیم الشان دن بھی ہے اور محرم الحرام شریف کی آج 10 تاریخ بھی ہے، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، آج وہ بھی ہے۔ اور سید الشہداء، نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیارے محبوب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو جمعۃ المبارک کے دن تقریباً 2-2:30 بجے کے درمیان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت شہادت ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، 10 محرم الحرام شریف بھی ہے، تو یہ نسبتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی برکت سے اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرمائے اور اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرمائے، کیونکہ امام حسین خلافت یا حکومت یا بادشاہت کی جنگ لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے بچوں سمیت آپ تشریف لے گئے تھے۔ جنگوں پر جب جایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے جایا جاتا، گھر کی خواتین کو نہیں لے جایا جا سکتا، ساتھ میں جنگجو لے جایا جاتا ہے، اور بڑے کرو فر کے ساتھ میدان جہاد میں اترنے والے سواریوں کے ساتھ اور اسلحے سے لیس اور سامان جنگ کے ساتھ جایا جاتا ہے۔ امام حسین تو نہتے 18,000 جو کوفیوں نے خطوط لکھے تھے کہ اے مولا حسین، اے نواسہ رسول، آپ آئیے، آپ کے نانا کے دین کی یزید دھجیاں اڑا رہا ہے، شریعت کی حدود کو پامال کر رہا ہے، پورے لوگ تیار ہیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ لیکن ان کوفیوں کی بے وفائی بھی دیکھو، جنہوں نے 18,000 خط لکھے تھے، یزید نے اور ان کے جتنے بھی کارندے تھے ان کی بدماشیوں میں ایسے دبے کہ ایک وقت میں 18,000 کوفیوں کے ہاتھ میں خطوط تھے جو امام حسین کو بلانے کے لیے لکھے گئے تھے۔ دوسرے وقت میں جب یزید نے اور اس کے کارندوں نے دھمکیاں دی
کہ کچھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ان بدبختوں نے بجائے امام حسین کا ساتھ دینے کے یزیدیوں کے لشکر میں پھر ہاتھوں میں تلواریں پکڑ لی اور نانا اور نواسہ رسول کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہو گئے۔ ایسے بے وفا جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، کوفہ کے بازاروں میں جب یہ لٹا پٹا قافلہ جب شام کی طرف روانہ ہوا تو کوفی رو رہے تھے۔ امام زین العابدین جو بیماری میں اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان روتے ہوئے بے وفا کوفیوں کی طرف متوجہ ہو کے آپ نے فرمایا، او مارنے والوں، مارتے بھی خود ہو اور پھر روتے بھی خود ہو، کیسے بے وفا ہو، بلایا بھی تم نے اور پھر مہمان نوازی یوں کی کہ ہمارے خانوادہ نبوت کے سرتن سے جدا کر دیے، اب رو بھی تم خود رہے ہو۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس وقت اللہ اکبر اپنے بابا کے خون حیدری کی لاج رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا، ظالمو سنو، بے وفائیاں کر کے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو اور یہ دکھا رہے ہو کہ تم اہل بیت کے وفادار ہو، نہیں، یہ تمہاری سب سے بڑی غداری اور بے وفائی ہے۔ یاد رکھو یہی تمہارا عمل ساری زندگی قیامت تک تمہیں اسی طرح رلاتا رہے، رونا ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، یوم عاشور کا دن ہے، اور اس 10 محرم الحرام کو صرف واقعہ کربلا سے نسبت نہیں بلکہ یہ تاریخ انسانیت میں اور رب کے ہاں اس کی یوم عاشور 10 محرم الحرام کی بڑی تاریخ ہے۔ چند ایک جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا کے علاوہ کیا ہوا، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جب روح پھونکی اور اس مٹی کے بت میں جب روح اللہ پاک نے روح پھونکی تو اس میں جب جان آئی تو وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے عرش کی جب تخلیق فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح جب اللہ نے سورج کی تخلیق فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے چاند ستاروں کی جب تخلیق فرمائی تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے زمین کی جب تخلیق کا آغاز فرمایا تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام یوم عاشور کا دن تھا۔ اسی طرح جب اللہ نے آسمان کی تخلیق فرمائی تو 10 محرم الحرام کے دن اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی، اور اسی طرح اللہ نے جب جنت تخلیق فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن تخلیق فرمائی۔ تو یہ دن تاریخی دن ہے، صرف اسے امام حسین کی شہادت سے نسبت نہیں، ہاں یہ ضرور ہے اتنی نسبتیں لینے کے باوجود بھی 10 محرم الحرام کا دن گمنام تھا۔ نواسہ رسول نے اس گمنامی کو ایسی عظمتیں شان عطا فرما دی کہ اب ابن آدم کا بچہ 10 محرم الحرام کی عظمت اور شان سے واقف ہے۔ نواسہ رسول کی شہادت نے باقی ساری جو یادیں اس دن سے وابستہ تھی ان سب کو جو ہے وہ ان کو عظمت عطا فرما دی اور ان کی پہچان جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ اب جب یوم شہادت بیان کیا جاتا ہے تو ساتھ میں یوم عاشور کی یہ نسبتیں جو میں نے بیان کیا ان کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی 10 محرم الحرام کے دن ہے، اور جب اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ وہ بھی کس کا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں آپ تشریف لے گئے تھے اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی آپ نے جو تسبیح کی تکرار فرمائی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو 10 محرم الحرام کے دن ہی نجات عطا فرمائی۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے پوری روئے زمین پر چرند پرند درخت شجر حجر ہوائیں سب اللہ نے ان کے تابع فرما دیے تھے، جن کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، اللہ کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور اللہ نے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا جب اللہ نے ان کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرما دی۔ تو پتہ چلا یہ دن جھولیاں بھرنے کا دن ہے۔ یہ دن کیا ہے؟ جھولیاں بھرنے کا دن ہے، رب سے مانگنے کا دن ہے، عزتیں پانے کا دن ہے،
रब की बारगाह में मनाजात पेश करने का दिन है, रब की रहमत का सवाल करने का दिन है, रब से उसके फजल के मांगने का दिन है, रब की इबादत का दिन है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का दिन है, अल्लाह की नेमतों के इजहार का दिन है, अल्लाह की बारगाह में अपनी आजिज़ी इंकिसारी के साथ सर पर सुजूद होकर अपने गुनाहों की माफी मांगने का दिन है। ये दिन गमे हुसैन में जरूर आंसू बहाए जाए, पर ये दिन तो रब से इनामात की वसूली का दिन है। ये दिन तो रब की रहमतें जो उतर रही हैं उनको समेटने का दिन है और रब से इनाम और इकराम के पाने का दिन है ये दिन। और इसी तरह इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से सबसे पहली बारिश जमीन पे बरसाई। वो दिन कौन सा था? 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। ये तो चंद एक बातें थी जो निस्बतें थी जो मैंने 10 मुहर्रमुल हराम शरीफ के दिन के हवाले से मैंने पेश की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो तूफान आया था और आपकी कश्ती जिसने पूरी रुए जमीन को जो है वो उसने घुमाया, और फिर उसके बाद जो भी पहाड़ के जब आप किनारे पर वो कश्ती लगी तो वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। वो दिन भी क्या था? 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और इसी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को नमरूद की आग से निजात अता फरमाई थी। और भी कई निस्बतें हैं। और इसी दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन, यौम आशूर का दिन, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन, इसी दिन नवासाए रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई। ये नवासाए रसूल की शहादत का दिन है, ये हुजूर के खानदान के शहीद होने का दिन है, तो इसलिए इसको ये निस्बत भी हासिल है। और इस एजाज ने 10 मुहर्रमुल हराम को पूरे मशरिक व मगरिब में, शुमाल व जुनूब में अजमतें भी अता फरमाई, शानें भी अता फरमाई। जब जब नवासाए रसूल का जिक्र होता है तो 10 मुहर्रमुल हराम की दीगर यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है हुजूर की अहले बैत की फजीलत और बिलखुसूस नवासाए रसूल हजरत सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत। चंद बातें अपनी आखिरत को संवारने के लिए और उनका नामे नामी इसमें गिरामी अपनी जुबान पर लाकर रसूलुल्लाह की निगाहें और दुआएं लेने के लिए मैं जो है वो जिक्र करूंगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर के असहाब की मोहब्बत भी नसीब फरमाए और हुजूर की आल की और हुजूर की अहले बैत की और हुजूर की अज़वाज की मोहब्बत भी, अदब भी, एहतराम भी नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबी व बारक व सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपनी जनाब से नेमतों से नवाजा है। अल्लाह पाक ने तुम्हें बेहिसाब बेशुमार नेमतें दी हैं, इसलिए अपने रब से मोहब्बत करो और मुझसे मेरे रब की वजह से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरा रब मुझसे मोहब्बत फरमाता है। मैं मुस्तफा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का हबीब और अल्लाह का महबूब हूं और मैं ही वजह तखलीक कायनात हूं। रब ने जितनी भी तुम्हें नेमतें दी हैं, इन नेमतों के मिलने की वजह मैं मुस्तफा की आमद है। अगर मैं ना होता तो अल्लाह कुछ भी ना बनाता। हदीस कुदसी है, अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब अगर आप ना होते, आपकी आमद मकसूद ना होती, आपकी विलादत मकसूद ना होती, तो ना ये जमीन होती, ना आसमान होते, ना मशरिक होते, ना जुनूब होते, ना शुमाल होते, ना ये चांद होते, ना सितारे होते। हत्ता के रब ने फरमाया महबूब मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। ये जो कुछ भी रौनक लगी है इस आलम दुनिया में या जितने आलम बसाए गए हैं, ये सब आमद मुस्तफा का सदका है, ये आमद मुस्तफा का सदका है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अल्लाह से मोहब्बत करो इसलिए कि उसने तुम्हें नेमतें दी हैं, और मुझसे मोहब्बत करो इसलिए कि मैं रब का हबीब और मैं रब का महबूब हूं। अल्लाह जोर से नारा लगा, या रसूल अल्लाह या अली। और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मेरी मोहब्बत का तुम्हारे यहां हया है, मेरी जात का हया करते हो, मेरा रब मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अपनी अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। इसलिए अगर मेरी मोहब्बत पाना चाहते हो तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। उन्हीं की मोहब्बत में मोहब्बत अहले बैत भी है, मोहब्बत मुस्तफा भी है और मोहब्बत खुदा भी है।
तो अहले बैत की मोहब्बत ये हर मोमिन कलमा गो मुसलमान पर वाजिब, फर्ज और लाजिम और जुज़्व ईमान है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात उसको अपनी जात से ज्यादा महबूब ना हो जाए। उस वक्त तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरे घर वाले उसको अपने घर वालों से ज्यादा महबूब ना हो जाए। बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी आल उसकी आल से ज्यादा महबूब न हो जाए। उस वक्त तक हुजूर ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, उसके अंदर ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक मेरी औलाद की मोहब्बत से ज्यादा, अपनी औलाद की मोहब्बत से ज्यादा मेरी औलाद से उसे मोहब्बत ना हो जाए। और हुजूर ने फरमाया, उस वक्त तक कामिल बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मुस्तफा उसको उसकी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाए। हुजूर ने मेयार ईमान बयान फरमा दिया है। अगर चाहते हो तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो, मोतबर हो, रब की बारगाह में मकबूल हो, तो उसके लिए तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर की औलाद से मोहब्बत करना होगी। तुम्हें अपनी जात से ज्यादा हुजूर से इश्क और मोहब्बत करना होगा। तुम्हें अपने घर वालों से ज्यादा रसूलुल्लाह के घर वालों को अजीज जानना होगा। इसीलिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मुझे मेरे रब की कसम, ताजदार सदाकत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मुझे मेरे रब की कसम अपने अकरबा से, अपने रिश्तेदारों से, खानदान वालों से, औलाद से सिला रहमी की बनिस्बत मुझे ये बात ज्यादा पसंद है कि मैं मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ सिला रहमी करूं। यानी मैं अगर अपनी औलाद की, आल की, खानदान वालों की, मेरे जो कबीले वाले, उनकी अगर खिदमत नौकरी करूं, मुझे ये इतना पसंद नहीं जितना पसंद मुझे हुजूर की औलाद की खिदमत करना पसंद है, जितना मुझे हुजूर की आल की खिदमत करना पसंद है, जितना मुझे इमाम हसन इमाम हुसैन की नौकरी करना पसंद है, मुझे ये अपनी औलाद से भी ज्यादा महबूब है, अपने खानदान वालों से भी ज्यादा महबूब है, ताकि मैं अगर अपनी अहले खाना से, अपने अकरबा से सिला रहमी करूंगा, मैं खुश होऊंगा, मेरा रब खुश होगा। अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद की जो है वो खिदमत करूंगा, तो जहां मुझे सुकून मिलेगा वहीं अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का रसूल भी राजी होगा, और ये अल्लाह वाले आले बैत भी मुझसे राजी होंगे। यही वजह है। मोहब्बत का एक मंजर देखिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक कबीला, एक इलाका फतह हुआ, वहां से कीमती चादर और खूबसूरत चादर आई, तो आपके बारगाह में जब वो पेश की गई बतौर माले गनीमत के, तो आपने फरमाया, चादर बड़ी कीमती है और खूबसूरत भी है। इस वक्त मदीने में सबसे ज्यादा अगर कोई हसीन और जमील है इंसानों में, तो वो शबीह मुस्तफा इमाम हुसैन है, जिनका जिस्म शबीह मुस्तफा है, जिनका जिस्म हुजूर के जिस्म के मुशाबे है। आपने फरमाया, कीमती चादर है, खूबसूरत चादर है, बुलाओ शहजादा रसूल को। जब बुलाया गया तो आपके कंधों पर जब वो चादर सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने उड़ाई, तो आपने फरमाया, शहजादा भी सोना है, चादर भी सोनी है, सोनी शायद नजर आ रही है, पसंद आ रही है, खूबसूरत लग रही है, शहजादा भी कीमती है, ये चादर भी कीमती है, लिहाजा ये ज्यादा इस चादर के हकदार नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखिए। यमन से कुछ कपड़े आए, वो माले गनीमत में पेश किए गए, पर उन शहजादों के बराबर के कपड़े नहीं थे। आप गमगीन हुए, आपने दोबारा गवर्नर यमन को खत लिखा, आपने फरमाया, मदीने वालों को तो कपड़े मिल गए, लेकिन मुझे खुशी नहीं, क्योंकि नवासे रसूल की नाप के कपड़े नहीं है, लिहाजा इस नाप के कपड़े दोबारा बनवा के यमन से भेजो। जब भेजे गए, शहजादों को पहनाया गया, तो शहजादों से कहने लगे, शहजादों, पहले इतना माले गनीमत तकसीम किया, मुझे खुशी नहीं हुई, अब तुम्हारे जिस्म पर ये यमनी जोड़े देखकर फारूक आजम का दिल बाग बाग हो गया है। क्या हो गया है? दिल बाग बाग हो गया है। हजरत सैयदना उमर से मोहब्बत करने वालों, अगर तुम्हारा जिक्र हुसैन सुन के दिल बाग बाग हो गया है, तो समझ लो तुम फारूकी हो, समझ लो तुम क्या हो? फारूकी हो। अगर तुम्हारी खिदमत और नौकरी करने से दिल बाग बाग हो जाए अहले बैत की मोहब्बत और खिदमत नौकरी करने से, तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर भी सिद्दीक अकबर की मोहब्बत मौजूद है, सिद्दीक की जगह। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत की मोहब्बत जुज़्व ईमान है। अगर इस मोहब्बत में किसी तरह का नुक्स है, अगर इस मोहब्बत में किसी तरह का झोल है, कमी है, कजी है,
अहले बैत के हवाले से अगर तुम्हारा अकीदा दुरुस्त नहीं तो सुनो, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मकाम इब्राहिम और बैतुल्लाह के दरमियान अगर कोई बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहे, कहां? बैतुल्लाह में, और वहां एक नमाज पढ़ो तो कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? 1,00,000 नमाज का सवाब। एक कुरान पाक खत्म करो तो 1,00,000 कुरान पाक का सवाब मिलेगा। एक नेकी करो तो 1,00,000 नेकियों के बराबर का सवाब मिलेगा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अगर कोई बंदा सारी जिंदगी उम्र भर मकाम इब्राहिम और बैतुल्लाह के दरमियान नमाजें पढ़ता रहे, इबादत करता रहे और दिन को रोजा रखता रहे, अगर उसके दिल में मेरी अहले बैत का प्यार नहीं तो जहन्नम में जाने से कोई चीज उसे नहीं रोक सकती। नमाजें भी उसी की कबूल जिसके दिल में अल्लाह का प्यार भी हो, हुजूर का प्यार भी हो और हुजूर की आल का प्यार भी हो। लब्बैक या लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन। सारे बोलो, ये किसी मकतबा फिक्र का नारा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन पूरी इंसानियत का हुसैन है। इतने मुसलमान हुसैन से प्यार नहीं करते जितना प्यार हिंदू करते हैं। सारे लगाओ नारा, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन। हाथों को बुलंद करो, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हसन, लब्बैक या हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर इमाम हुसैन करबला न जाते तो आज ये अजानें ना होती, आज ये मिंबर और मेहराब की रौनक ना होती, आज ये पीरों के पीर खाने न चलते, आज ये तंजीम और तहरीकों का उरूज ना होता। ये सब सदका है इमाम हुसैन की करबला में कुर्बानी का। आज पीर साहब अपनी खानकाह से हुजूर की नमाज के लिए तपते हुए सूरज में रोड पे नहीं आ सकते। अरे तपते हुए सहरा पे नवासाए रसूल ने गर्दन कटा के फिर नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया, पीर वही कामयाब होगा जो शब्बीरी सुन्नत अदा करेगा। हुसैन ने नाना के मदीना को भी बसा के बताया, जब नाना के दीन पे हर्फ आया तो फिर खानकाह नहीं देखी। रूए जमीन पे सबसे अजमत वाली जगह है जहां मेरे आका आराम फरमा रहे हैं, जहां सरकार मदीना तशरीफ फरमाए। तमाम मकातब फिक्र का इज्तिमाई ये मौक़िफ़ है कि जो मट्टी इस वक्त रसूलुल्लाह के जिस्म अक़दस के बोसे ले रही है, इसका मकाम, इसकी शान अल्लाह के अर्श मुअल्ला से भी ज्यादा फजीलत वाली है। लेकिन इमाम हुसैन ने खानकाह नहीं बचाई, इसलिए मैं अपनों से कह रहा हूं क्योंकि हम हुसैनी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हुसैन सच्चाई का नाम है, हुसैन हक गोई का नाम है, हुसैन खुशामद का नाम नहीं, चापलूसी का नाम नहीं और अपने ऐबों पे पर्दे डालने का नाम नहीं। हुसैन गज वज के सच्चाई और हक की आबियारी और हक का परचम उठा के वक्त के यजीद की आंखों में आंखें डाल के नबी के दीन के नाम पे और नबी की इमारत पे पहरा देने का नाम है हुसैनियत। ये है हुसैनियत, कंप्रोमाइज होने का नाम नहीं। कहा गया बैत कर लो, इलाके की बादशाह शहजादे बना देंगे, सब कुछ कर जाएगा। फरमाया नाना का दीन बचाने आया और रियासत लेने नहीं आया, नाना का दीन बचाने आया और रियाल डॉलर लेने नहीं आया। हुसैन ने अपनी जान दे के बताया, ये तो एक जान है, अगर हो करोड़ों नाना के दीन पे एक एक करके हुसैन कुर्बान कर देगा, पर नाना के दीन पे हर्फ नहीं आने देगा। ये वो लगाया हुआ पौधा है जनाब सैयदना इमाम हुसैन का। आपने अपनी गर्दन तो कटा दी, 6 माह का अली असगर तो दे दिया, बावफा हजरत गाजी अब्बास के कटे हुए बाजू तो हजरत इमाम हुसैन ने देखे। आपके करियल जवान जो शबीए मुस्तफा थे, जिनकी 9 मुहर्रम हराम को शहादत हुई, हजरत सैयदना इमाम अली अकबर। अल्लाह अकबर। तारीख ने लिखा है कि जब ये अली अकबर नमाज का वक्त होता अजान देते ना, अपने तो अपने गैर भी आंसू बहाते थे। जब ये अजान देते थे तो इनकी आवाज से हजरत मौला अली की गरज दार आवाज नजर आती थी और इनका चेहरा ऐसा था, जब कोई इन्हें देखता था तो इनके चेहरे में शबीए मुस्तफा नजर आती थी। इनके चेहरे में क्या है? शबीए मुस्तफा नजर आती थी। अल्लाह अकबर। हम किन का जिक्र कर रहे हैं? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। आए आए, मोहब्बत की इंतहा देखो, मोहब्बत की हद नहीं हो गई। हुजूर ने फरमाया हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब जो हुसैन का दुश्मन वो मेरा दुश्मन, जो मेरा दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, और अल्लाह का जो दुश्मन बने अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी बर्बाद कर देता है, आखिरत भी बर्बाद कर देता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। अरे किस मुंह से जन्नत में दाखिल हो गए? आगे सरदारी वहां भी इमाम हुसैन की होगी।
इमाम हसन की होगी। इसलिए तो हमारे ख्वाजा अजमेरी ने हमें दर्श दिया, कहा जब हुसैन का नाम आए तो ये जहन में रखना, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। सरदार भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। सरदार नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। कहा अपना सर तो तन से जुदा करवा दिया, पर आप अपना हाथ यजीद पलीत के हाथ में नहीं दिया। और कहा अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, अजमेर का ख्वाजा कह रहा है, अगर मुझसे हुसैन पूछना चाहते हो, दीन की पनाह भी हुसैन है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हुसैन है। अगर कलमा बचाना चाहते हो, कलमे के साथ इस दुनिया से जाना चाहते हो, तो अपना ताल्लुक हुसैन से जोड़ लो, हुसैन का दामन पकड़ लो। तुम्हारे दिल में असहाबे मोहम्मद का प्यार भी हो, हुजूर की अहले बैत का प्यार भी हो। याद रखो, बेईमान होकर नहीं मरोगे, जब भी जाओगे तुम्हारी जुबानों पर वो शब्बीर वाला तराना कलमा का जारी होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने जलीलुल कद्र सहाबी है, और हम हमारे फुकहा ने अक्सर अहादीस मुबारका जो ली है वो हजरत इब्न मसऊद से ली है। वो फरमाते हैं कि आले मोहम्मद की एक दिन की मोहब्बत, क्या आले मोहम्मद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन की मोहब्बत एक साल की देर या इबादत से अफजल है। एक दिन की मोहब्बत, और जिनकी सारी जिंदगियां यार अहले बैत की मोहब्बत में गुजर जाए। अल्लाह अकबर। अगर कोई हमसे पूछे तो हम तो ये कहते हैं, मैं तो पंजतन का, सारे कहो यार सारे, मैं तो पंजतन का। इमाम हुसैन ने तख्ते में सहरा पर गर्दन कटा के नेज़े पे नाना का कुरान पढ़ के बताया कि रब ने जो कुरान में फरमाया शहीद जिंदा है। आज तक सर कटने के बाद कोई अमली तौर पर ऐसी नजीर पेश नहीं हुई कि शहीद कैसे जिंदा है। हुसैन ने करबला में नेज़े की तपती हुई रेत पर, नेज़े की नोक पर तपते हुए सहरा करबला में जब यजीदियों ने इमाम हुसैन का नेज़े पे सर रखा, जुबान बंद नहीं थी, जुबान नाना पे उतरने वाले कुरान के तराने अलाप रही थी। और जमाने वालों ने देखा कि अल्लाह ने जो फरमाया है शहीद जिंदा होता है। अली के बेटे ने अमली तौर पर सर कटा के बताया, अरे दुनिया वालों देख लो, अल्लाह ने जो फरमाया यूं शहीद जिंदा होते हैं। क्या होते हैं? यूं शहीद जिंदा होते हैं। हुसैन ने तपते हुए सहरा पे बेटे कटा दिए, खानवादा कुहा दिया अपना, और उन्होंने फिर भी कुरान नहीं छोड़ा। उधर 3 दिन के प्यासे हैं, कई दिन की भूख है, अफलास है, सब कुछ है, और शहीद होने के बाद भी उनकी जुबानों पर कलमा कोई शिकवे का नहीं, फिर भी सारी सारी रात कुरान की आवाजें आती रहती थी। अगर हुसैनी बनना चाहते हो कुरान से जुड़ जाओ। अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो सच्चे रसूलुल्लाह के ताबेदार और फरमाबरदार और हुजूर की सीरत को अपनाने वाले बन जाओ। अगर हुसैनी बनना चाहते हो ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक अकबर का प्यार अपने दिल में बसा लो, हजरत फारूक आजम की मोहब्बत को बसा लो। दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी है। तो हम यही कहते हैं, जब कोई हमसे पूछता है तुम्हारा हुजूर के असहाब से, हुजूर की आल से, हुजूर की आले बैत से, हुजूर की औलाद से क्या मोहब्बत है, अरे हम तो कहते हैं हम तो सिद्दीकी गुलाम हैं, हम तो फारूकी गुलाम हैं, हम तो उस्मानी गुलाम हैं, हम तो हुजूर के असहाब के नौकर हैं, हम तो हुजूर की आल के नौकर हैं, हम तो हुजूर की आले बैत के नौकर हैं, हम तो हुजूर के पंजतन के गुलाम हैं। और हम फिर क्या कहते हैं? मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, मैं तो सबको मैं तो पंजतन का हो। ये तैबा मस्जिद भी गवाह हो जाए, सब कहें मैं तो पंजतन का हो। कोई जुबान खामोश ना रहे। कयामत के दिन दुनिया में आज तुम कह रहे हो मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, कयामत के दिन या अल्लाह जब हम पेश हो इस वक्त इमाम हुसैन फरमाए, इमाम हसन फरमाए, अरे ये देखो ये तो हमारे गुलाम हैं जो कहते थे मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो सरकार ने हजरत अली की तरफ देख के फरमाया, अली जो तुझसे मोहब्बत करे, जो तेरी जोजा मेरी बेटी फातिमा से प्यार करे, जो तेरे प्यारे बेटों से प्यार करे, जन्नत में जहां हम रहेंगे वो मोहब्बत प्यार करने वाले भी हमारे गुलाम, हमारे नौकर बन के, हमारे ही दर्जे में हमारे पड़ोसी बन के रहेंगे। तो कहिए मैं तो पंजतन का हूं, मैं तो पंजतन का। हम किसी बादशाह के गुलाम नहीं, हम किसी वजीर के नौकर नहीं, हम किसी दुनियादार के तराने पढ़ने वाले नहीं। हम सुन्नियों की पहचान क्या है? हम तो यही कहते हैं मैं तो पंजतन का हूं।
अरे ये वो गुलामी है जो यहाँ जिसने पाली, कब्र में भी इन्हीं का गुलाम है, महशर में भी इन्हीं का गुलाम है, जन्नत में जहाँ आका रहेंगे ये गुलाम भी उन्हीं के साथ होंगे। सब तो सब कहिए, मैं तो पंजतन का गुलाम, बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला अज़ीम शान महफिल ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमारी इंतजामिया ने एहतमाम फरमाया है। अजीम मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत हुसैन अज़हरी साहब हाफ़िज़हुल्लाह तआला तशरीफ लाएंगे। इंशाअल्लाह नूरानी कुरानी और विजदानी बयान फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात को दावत है कि हफ्ते